थिंग्स आर नॉट टेलर्ड फॉर आवर कंट्री पाकिस्तान के लिए। आपको अभी आपके पेमेंट गेटवेज नहीं यूज़ कर सकते, अपने मल्टीपल करेंसीज में सेल करना है, और आप यूएसपी उनका नहीं सही तरह से यूज़ कर सकती, और आपको इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए छोटे छोटे आपको एप्लीकेशन साथ कनेक्ट करनी पड़ती हैं। उनको नीड क्यों पड़ी है बैकएंड ऑपरेशंस मैनेज करने के लिए एक ERP सोल्यूशन की, जस्ट लाइक जिनको, क्योंकि शॉपफाई पे वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती तो वो इस पे कर रहे हैं। तो इन केस ऑफ कॉमर्स वो सब कुछ वी विल मैनेजिंग थ्रू वन स्क्रीन, दैट विल बी कॉमर्स। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यूज़ कर रहा है इसको एंड टू एंड। अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पिछले दिनों जितनी सेल्स लगी हैं, उन्होंने काफ़ी जो बहुत अच्छा, उन्होंने जब से लाइव हुए हैं उन्होंने अपनी बहुत अच्छी, वन ऑफ द बिगेस्ट सेल अपनी की है इन टर्म्स ऑफ PCB ने अपनी ऑनलाइन, तो वो कॉमर्स के थ्रू की है। आज एक XYZ वेबसाइट पे जाता है, इज अ मेल, और वेबसाइट पे उसको आइडिया है, उसके पास डाटा सेट सजेस्ट करते हैं कि वो वैन हमेशा आके पैंट्स खरीदता है या शूज़ खरीदता है, जो भी है उसके मुताबिक पूरी वेबसाइट का जो इंटरफेस है और जो आपको वो कैटेगरी शो कर रहा है, जो आपको कलेक्शन शो कर रहा है, जो प्रोडक्ट शो कर रहा है, दैट ऑल विल बी पर्सनलाइज्ड अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस एंड योर डाटा सेट्स। Assalamu alaikum viewers, my name is Umair Arshad. I am the Chief Operating Officer at Hive Metrics. New Commerce podcast series is brought to you by FutureFest. The reason to start this series was to reveal the secrets and the insights of e-commerce and IT-based products and IT companies and IT software houses, and to hear the unheard stories of the industry. Because there are so many people, though they have social media appearance and presence, and it's very easy for them to tell their stories, but there were people, those who are working really hard day and night in their organizations, and they have done a lot and they have contributed a lot to the industry. So we want to bring these people in front of the camera and to listen their stories. Similar, this is what I believe is this, that skill is necessary, but in the meantime, in the process, that if you are able to complete your studies, you can afford your studies, you should definitely focus on your studies. The guest which we have today with us, he completed his the software engineering degree from Beacon House University, and then he joined one of the biggest omni retail solutions in Pakistan, Jinko. He's a product owner at Jinko, and he's the product lead at Converse by Jinko, none other than Arbaz Khan. Assalamu alaikum Arbaz, कैसे हैं आप? ठीक है? Alhamdulillah, thank you for having me here. Sir, thank you. We are thankful and grateful to you कि आपने अपना टाइम भी निकाला, आप आए भी. We are having this podcast on Sunday. Everybody would like to rest on Sunday. We definitely need rest and want to be in comfort. लेकिन we felt the need, and we are here for a cause, and we want you to share the insights and everything. We'll begin. We'll talk about your journey. We'll talk about your recent the employment. We'll talk about the upcoming projects as well. We'll begin from who is Arbaz Khan, what is his educational background, what is his family background, and how did this beautiful e-commerce journey started? So, I started my journey from Jinko Retail as a business analyst. So, if I go a little back, I did software engineering from Beacon House National University. So, there's an interesting story with my educational background. When I started my degree, I was very focused कि मुझे करना क्या, मेरा रोड मैप बहुत क्लियर था अपनी जर्नी को लेके. लेकिन इन द सेकेंड सेमेस्टर आई गॉट अ रियलिटी चेक कि यार आई एम नॉट मेड फॉर द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आई कैन नॉट बी अ डेवलपर. ये नहीं था कि मुझे आता नहीं था, लेकिन आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. तो इट इज़ अ गुड मोटिवेशन फॉर द न्यू कमर्स जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं और वो अपना अब आगे किसी इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं, टेक इंडस्ट्री को, एंड देर सफरिंग विद द डेवलपमेंट स्किल्स, राइट. तो मुझे सेकंड थर्ड सेमेस्टर में आइडिया हो गया कि यार आई एम नॉट गुड विद द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. तो मैंने बजाय कि उसको मैं वहाँ पे छोड़ देता बीच में, तो व्हाट आई डिड, मैंने क्या किया कि मैंने अपने दूसरे कोर्सेज पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया. मैंने ये ढूंढना शुरू कर दिया कि व्हाट आई ट्रूली लव. अब जब बाकी कोर्सेज थे मेरी डिग्री में, जैसे कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, आई वाज रियली गुड इन दैट थिंग्स. इवन जब हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स होते थे, इवन FYP, तो मुझे टीम में लोग रखते ही इसलिए थे कि वो मुझे मेरे से डॉक्यूमेंटेशन करवा सकते हैं. वॉज वेरी गुड विद द प्रेजेंटेशन स्किल्स, डॉक्यूमेंटेशन, राइटिंग वगैरह, पूरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कोस्टिंग, बजटिंग, आई वॉज रियली गुड इन दोज थिंग्स. तो मैंने उस टाइम अपना देख लिया कि यार आई एम गुड विद द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनालिसिस स्किल्स वगैरह. इवन व्हेन आई वेंट टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फॉर शॉर्ट टर्म एक्सचेंज प्रोग्राम थ्रू USEFP, तो इवन वहाँ पे भी मैंने जिन लोगों को देखा, जो लोग वहाँ पे जिन हमें इंडस्ट्रीज में फिरते थे, जो लोगों को मिलते थे, देयर वर मैनी पीपल जिनके पास टेक्निकल डिग्री थी, बट दे वर वर्किंग एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर और प्रोडक्ट मैनेजर और इवन द मैनेजमेंट साइड ऑफ द टेक इंडस्ट्रीज. तो बस रियली स्टंट देख के ये कि यार ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं. देयर इज अ स्टेरियोटाइप इन आवर एजुकेशनल कि यार अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया तो आपने डेवलपर ही बनना है, आपने यही बनना है. तो दिस इज़ हाउ आई बिकेम अ प्रोडक्ट मैनेजर
I started as a business analyst in Alchemative. Alchemative में I joined as a business analyst. उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे I was working on few e-commerce projects. E-commerce projects में क्या हो रहा था कि I was developing websites, Shopify पे और कुछ custom platforms थे. There comes Ubaid Arshad, which is the CEO of Jinko Retail, co-founder and CEO of the Jinko Retail. तो he one day came to me and said कि यार हम लोग ना एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, SSCs for Service Shoes Corporation in Dior Soloto, you might have an idea. Yes. तो डू यू वांट टू जॉइन मी? तो मैं कहा श्योर. मैंने इनसे पहले प्रोजेक्ट का सुना, विजन वगैरह, तो वाज रियली सन क्या रही, बड़ा मज़े की चीज़ है. आई वाज एक्साइटेड टू वर्क ऑन दैट. तो आई स्टार्टेड एज अ बिजनेस एनालिस्ट देयर. मेरा काम क्या होता था कि वी वर वर्किंग ऑन द रिक्वायरमेंट गैदरिंग, पूरा बिजनेस एनालिसिस करना. ये चीज़ें करते करते हमने इसको डेवलप करके डिलीवर कर दिया. बेसिकली अगर इफ़ आई एक्सप्लेन यू व्हाट जिंको इज़, तो बेसिकली जो हमने इसको एज अ प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, जिंको इज़ बेसिकली एन ई-कॉमर्स ऑपरेशनल ERP, या वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर ऑल ई-कॉमर्स नीड्स. बेसिकली क्या होता है कि अगर आपके पास एक ई-कॉमर्स स्टोर है, वेबसाइट है, तो इफ़ यू वांट टू मैनेज और योर ऑपरेशंस, अभी क्या होता है कि इन कन्वेंशनल स्टोर्स में आपको सारी चीज़ें मैनुअली मैनेज कर रही होती हैं. बी इट योर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, योर CRM, OMS, ईच एंड एवरीथिंग इज बिंग मैनेज मैनुअली. और यहाँ आपको अलग-अलग सेपरेट ऐप्स खरीदने पड़ते हैं, अलग-अलग इंटीग्रेशंस करवानी पड़ी होती हैं अपने स्टोर्स के साथ. सो व्हाट जिंको डू इज़, हम आपको एक पूरा वन विंडो सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं जिसमें सारी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही होती हैं इन अ वन विंडो. अब सब कुछ आपका सिर्फ अपनी वेबसाइट कनेक्ट करनी होती है और आपने इसको पूरा का पूरा आपका स्टोर सिंक हो जाता है. तो ये जो प्रॉब्लम थी मार्केट में, जो जिंको ने जो सोल्व की, अगर आप अभी देखें, SSC के केस में जब भी आई थी, लोग अपनी रिटेल साइट, अपनी वेबसाइट, वेबसाइट को अपने स्टोर्स के साथ, जो उनके ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर्स हैं, उनके साथ लिंक करना चाहते थे. नॉर्मली क्या होता है, ई-कॉमर्स के लिए डेडिकेटेड इन्वेंट्री रखनी पड़ती है जो कि जब तक सेल नहीं हो रही वहीं पड़ी रहती है. लेकिन वाई नॉट जस्ट लिंक योर रिटेल स्टोर्स विद योर ऑनलाइन वेबसाइट, विद योर ई-कॉमर्स स्टोर? तो दिस इज़ द मेजर गैप व्हाट जिंको फिल्ड. तो वहाँ से चलते हुए हमने वी कन्वर्टेड दैट प्रोजेक्ट इनटू अ प्रोडक्ट. हमें लगा कि मार्केट के दिस इज़ अ नीड ऑफ द मार्केट. हमने वो करते करते आई वाज प्रमोटेड एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर. मैंने प्रोजेक्ट्स को लेके चला, क्लाइंट्स को ऑनबोर्डिंग स्टार्ट की. देन आफ्टर 50-60 ब्रांड्स आई वाज प्रमोटेड एज अ प्रोडक्ट मैनेजर. एज अ प्रोडक्ट मैनेजर मेरा काम होता था कि मैंने प्रोडक्ट के रोड मैप को, विजन को अलाइन करना है विद द कंपनी गोल्स, विद द कस्टमर्स, जो उनका एक्सपीरियंस है, विद द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, उनके साथ जो कस्टमर का जो भी हमारे साथ होगा उसके साथ आई नीडेड टू अलाइन इट. Then I was promoted as a product owner at Jinko, जहाँ पे I was maintaining the backlog. अभी भी I am maintaining the backlog of the system. By backlog I mean जितनी भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स आ रही होती हैं, जो भी हमने मॉड्यूल्स डेवलप करने हैं, उसका बैकलॉग मेंटेन करना कि अच्छा अपना नेक्स्ट क्या डेवलपमेंट में जाना है, नेक्स्ट क्या हमने डेवलपमेंट टीम को देना है. तो दिस इज़ व्हाट अ प्रोडक्ट ओनर इज डूइंग. एंड पैरेलल आई एम वर्किंग एज अ प्रोडक्ट लीड इन कॉमर्स बाय जिंको. बेसिकली इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ जिंको. इसमें क्या है कि पहले हम बैकएंड ऑपरेशन पे फोकस कर रहे थे जिंको. तो कॉमर्स बाय जिंको में क्या हो रहा है कि वी आर आल्सो फोकसिंग ऑन द स्टोर फ्रंट साइड, जो कि मुझे लग रहा है कि हम लोगों को कि दिस इज़ अ नीड ऑफ मार्केट. अभी पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि जिस तरह से इन्फ्लेशन इंक्रीज़ कर रही है, अगर आप अभी बाकी जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स देखें, जस्ट लाइक शॉपिफाई, मोजेंटो, वो बहुत एक्सपेंसिव हो रहे हैं, हार्ड टू रीच, कि आप उनको अफोर्ड कर सकें. अफोर्डेबिलिटी फैक्टर इज़ गोइंग वेरी हाई. आपको डॉलर्स में पे करना पड़ा. इवन दो अभी तो ये भी हो रहा है कि अगर आपने शॉपिफाई को पेमेंट करनी है तो वो भी पेमेंट करना भी आपके लिए बहुत मसला बना हुआ है थ्रू क्रेडिट कार्ड्स, क्योंकि आपकी स्टेट बैंक वगैरह, आपकी गवर्नमेंट आपको नहीं, आपको जो डॉलर्स अब आउटफ्लो होने दे रही. तो दैट इज़ वन चैलेंज. नेक्स्ट के शॉपिफाई इज़ नॉट टेलर्ड फॉर आवर मार्केट. तो दिस इज़ द मेजर रीज़न कि हम लोग कॉमर्स पे क्यों फोकस कर रहे हैं, कि हमें पाकिस्तान में एक लोकली बिल्ट एक प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स चाहिए फॉर आवर ऑन मार्केट, जो कम्प्लीटली कस्टमाइजेबल हो, कम्प्लीटली टेलर्ड हो फॉर आवर मार्केट, जिसकी सारी नीड्स वगैरह हम एक ही सिंगल विंडो में, इन वन विंडो सोल्यूशन वी कैन कंप्लीट देम, वी कैन प्रोवाइड टू द क्लाइंट्स. उसमें सब कुछ एग्जिस्ट करता है. बीट योर पेमेंट गेटवेज, आपने स्टिचिंग मॉड्यूल्स चाहिए, आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट, आपका लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, वट एवर मॉड्यूल्स आर रिक्वायर्ड फॉर एन end-to-end e-commerce solution, from creating products, from selecting a theme for your website, to delivering that product, delivering that inventory to the house of your customer. वहाँ तक पूरी journey end-to-end is being managed through a single interface. That will be Commerce by Jinko. Arbaz, if Jinko is integrated with Shopify and an order lands on the Shopify store, then starts the journey of the order. So kindly tell us, अगर एक Shopify स्टोर पे जिंको इंटीग्रेटेड है और ऑर्डर लैंड्स ऑन द Shopify, उसके बाद की जर्नी स्टार्ट होती है. काइंडली एक्सप्लेन अस अबाउट दैट जर्नी ऑफ द ऑर्डर. बिल्कुल. ओके,
वंस एन ऑर्डर इज प्लेस्ड ऑन शॉपिफाई, जैसे एक ऑर्डर प्लेस होता है तो हम क्या करते हैं, विद इन फ्यू सेकंड्स, इन 2 to 3 सेकंड्स उस ऑर्डर को हम जिंको में ले आते हैं थ्रू वेबबुक्स. वेबबुक्स बेसिकली इज अ नोटिफिकेशन काइंड ऑफ थिंग. शॉपिफाई में नोटिफाई करता है कि भाई ऑर्डर प्लेस हो गया थ्रू वेबबुक्स. तो हम उस ऑर्डर को विद इन 3 सेकंड्स अपने सिस्टम में ले आते हैं. तो वंस दैट ऑर्डर लैंड्स इन जिंको, सारी प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है. तो सबसे पहले एक ऑर्डर जैसे ही लैंड होता है, हमारे सिस्टम में मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं जिसके थ्रू वो पूरी एक प्रोसेस से गुजर रहा होता है, जस्ट लाइक अ कन्वेयर बेल्ट. आपको आइडिया होगा कि जैसे टोयोटा या कोई भी आप कार की प्रोडक्शन हाउस में जाएं तो वहाँ पे एक कार पूरी एक पूरे डिफरेंट यूनिट से गुजर के एक कन्वेयर बेल्ट पे होती है, वो साथ गुजर के आगे जा रही होती है. तो उसी तरह जिंको के ऑर्डर की जो पूरी जर्नी है, दैट इज लाइक दैट. That is step by step. ये स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहले आपका ऑर्डर जो लैंड होता है दैट लैंड्स इन एन ओएमएस. ओएमएस में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि उसकी चेक करते हैं कि इन्वेंट्री मॉड्यूल के थ्रू उसकी इन्वेंट्री किस स्टोर में अवेलेबल है. फॉर एग्जांपल, आज आप यहाँ से बैठ के एग्जांपल देता हूँ कि एम आलम पे बैठे हुए ऑर्डर प्लेस करते हैं. एम आलम पे आपका एड्रेस एम आलम है. हम चेक करते हैं कि सबसे नियरेस्ट शॉप कौन सी है, रिटेल स्टोर कौन सा है या वेयर हाउस कौन सा है जो इस ऑर्डर को फुलफिल कर सकता है. हम उसकी इन्वेंट्री चेक करते हैं थ्रू लेट लॉन्ग, थ्रू जियो लोकेशन. हमारे पास ये सारी फंक्शनलिटीज एग्जिस्ट करती हैं. हम चेक करते हैं कि एम आलम पे फॉर एग्जांपल लिबर्टी में आपकी एक रिटेल स्टोर एग्जिस्ट करता है. हम उस लिबर्टी की स्टोर को वो ऑर्डर असाइन कर देते हैं और उस ऑर्डर पर उसको नोटिफाई कर देते हैं उस स्टोर के ब्रांड को, उसके स्टोर के ब्रांड को, ब्रांड मैनेजर को, कि भाई आपका ऑर्डर ना आया हुआ है, आपने उसको फुलफिल करना है. तो अब इससे क्या होता है, सबसे मेजर चीज़, डिलीवरी चार्जेस कम होते हैं. पहले क्या होता है कि अगर कराची जा रहा है ऑर्डर, आप कराची बैठे हैं, ऑर्डर लाहौर आ रहा है, तो वो चीज़ हम ख़त्म कर देते हैं, नियरेस्ट लोकेशन से ऑर्डर फुलफिल करवाते हैं. सेकंड, कस्टमर को ऑर्डर जल्दी डिलीवर हो रहा होता है कि जब जितना नियरेस्ट होगा तो ऑब्वियसली कस्टमर को ऑर्डर भी इवन सेम डे की भी हम जो फंक्शनलिटी है अपने क्लाइंट्स को दे रहे होते हैं. तो वंस ऑर्डर लैंड्स, उसको हम ओएमएस में लेके जाते हैं, ऑर्डर को हम असाइन करते हैं मल्टीपल लोकेशंस को. उस पर आईवीआर कॉल्स, उस पर कस्टमर वेरिफिकेशन के लिए ईमेल्स नोटिफिकेशन जारी होती हैं, सब कुछ रोबो कॉल सेंड करते हैं. कस्टमर ऑर्डर वेरीफाई करता है. अगर वेरीफाई हो जाता है तो ऑर्डर को ऑटोमेटिकली हम ब्रांड को दिखाते हैं, जो ब्रांड मैनेजर होता है वहाँ पे जो भी स्टोर में. उसके बाद वो उसको फुलफिल करता है. फुलफिल भी हमारे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के मॉडल के थ्रू कर रहा होता है कि ऑटोमेटिकली फुलफिलमेंट्स लग रही होती हैं. बी DHL, फेडेक्स, स्काईनेट, इवन लोकल के लिए TCS, ऑल कोरियर्स आर अवेलेबल इन जिनको ऑन अ सिंगल क्लिक ऑफ बटन. ये नहीं है कि आपको जाके मैनुअली आपको कंसाइनमेंट नंबर्स लगाने पड़े हैं. एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड थ्रू जिनको. तो हम लोग आपकी कंसाइनमेंट नंबर्स लगाते हैं. उसके बाद ऑटोमेटिकली कोरियर को कॉल चली जाती है कि भाई आपने ऑर्डर आके पिक करना है. आपने ऑर्डर पिक करना है एट XYZ टाइम, जो भी आपने अपने सिस्टम में किया सेट किया होता है. उसके बाद वो कोरियर पिक करने आता है. वंस दैट ऑर्डर हैज़ बिन पिक्ड अप, तो ऑटोमेटिकली दैट ऑर्डर मूव्स टू द डिस्पैच स्टेप. वंस दैट ऑर्डर हैज़ बिन डिस्पैच्ड, अब सभी जितनी भी स्टेजेस आपको बता रहा हूँ, जस्ट लाइक ऑन कन्वेयर बेल्ट, कस्टमर को सब जगहों पे नोटिफाई हो रहा होता है थ्रू SMS ईमेल कि भाई आपका ऑर्डर यहाँ पहुँचा है, आपका ये कंसाइनमेंट नंबर है, आपको किस दिन कौन सा ऑर्डर मिल रहा है. जिसके बैकएंड पे मल्टीपल ऑपरेशन चल रहे होते हैं. आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो रही है, आपका CRM में कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट मॉड्यूल में कस्टमर का सारा डाटा मेंटेन हो रहा है. उसमें सारी प्रोफाइल्स क्रिएट हो रही हैं, कस्टमर सेगमेंटेशंस क्रिएट हो रही हैं. साथ के साथ जितनी भी आपकी कस्टमर की डिटेल्स हैं, जस्ट लाइक कि उसने ऑर्डर कौन सा एक्सेप्ट किया, कौन सा रिजेक्ट किया, ये सारी रेशो सिस्टम थ्रू हमारे पास जितनी भी हमारे पास डाटा सेट्स एग्जिस्ट करते हैं उसके मुताबिक हम उसकी प्रोफाइल बिल्ड कर रहे होते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब कस्टमर आएगा क्या डिलीवरी एक्सेप्टेंस रेशियो है इस कस्टमर की, डिपेंडिंग कि कितने ऑर्डर ये एक्सेप्ट करता है, कितने रिजेक्ट करता है. तो अब ऑटोमेटिकली जब एक ऑर्डर कस्टमर रिसीव कर लेता है तो ऑर्डर ऑटोमेटिकली डिलीवर्ड मार्क हो जाता है. नहीं, इसमें जितने भी आप देख रहे हैं इसमें मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन है. कम से कम जो एक आम जो यूज़र है, जो सिस्टम यूज़र है, वो उस सिस्टम के साथ कर रहा है, मैनुअली कोई चीज़ को कर रहा है, काम कर रहा है. एवरीथिंग इज़ ऑटोमेटेड. इवन द इन्वेंट्री, जो भी आपकी वेबसाइट पे इन्वेंट्री शो हो रही होती है जो जिंको के साथ कनेक्टेड है, आपके जितने भी रिटेल स्टोर्स हैं, आपके जितने भी वेयर हाउसेज हैं, सबकी इन्वेंट्री रियल टाइम पे सिंक्रोनाइज हो रही होती है विद योर वेबसाइट. तो दिस इज़ द होल जर्नी ऑफ जिंको, जिसमें एक ऑर्डर स्टार्ट से लेके वंस द ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस टिल दैट ऑर्डर इज डिलीवर टू द कस्टमर्स होम, उसके बीच में जितने ऑपरेशंस हैं ऑल हैव बीन ऑटोमेटेड थ्रू जिंको. So basically, it's a one-stop solution and one window dashboard. Instead of you going on multiple logistics dashboards and you generate the CNs from there and then you generate the courier invoices from there. So opening all those multiple tabs on your system, you just land the order in the Jinko's dashboard, and once the order has been landed there, the journey starts of the order, and once it's been delivered, you are informed about the delivery and the logistics system of the brand. Exactly, yes. If this is what we have seen, that integration is an hectic process. If there are products available in the market of Microsoft and the other software houses as well. So, but this is the understanding that it takes a long time
for the integration process. How quick is your integration process? So we can onboard a brand, a mainstream brand, in about 2 to 3 hours in our system. So that depends कि आपकी requirements किस तरह की हैं. Mainstream brands हमारे पास जितने भी normally आते हैं, क्योंकि हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं, those all are dynamic, और कोई भी हमने static काम नहीं किया हुआ in terms कि अगर आपने कोई भी चीज़ को अपने integrate करना है, सबको हमने dynamically system में रखा हुआ है. You just need to, you can call it a plug and play system. Even if you want to connect your Shopify with Jinko, you just need to go to Shopify. वहाँ पे एक अपने Jinko as application वहाँ पे आप ऐड करते हैं. यानी कोई भी आपको technical skills या कोई भी language जाके ऐड कर सकता है. Now coming to the logistic side, अगर आपने logistic connect करना है अपना कोई भी logistic, be DHL, FedEx, you just need to add your accounts, account details, आपका जो भी आपको merchant ने आपके FedEx के Skynet ने provide किए होंगे वो आपने ऐड करने. And now coming to the ERP side, ERP में हमारे पास local, international सारे ERPs exist करते हैं जो Jinko के साथ connected हैं. That can be Dynamics, Retail Pro, हमारे पास SAP हमारे पास है, Oracle. हाँ Oracle भी exist करता है, Candela है, GTech है. ये सारे जितने locally भी जो ERPs हैं, point of sales हैं, all are integrated with system. You just need to add the credentials और आप उनको directly live उनको आपकी inventory synchronize होने लग पड़ेगी, आपकी order manage होने लग पड़ेंगे, आपका warehouse connect हो जाएगा. Even Jinko के पास अपना भी warehouse management system exist करता है, वो भी connect हो जाएगा. तो all of these things are plug and play model. हम कोई भी चीज़ को मैनुअली या कोई आपको नहीं करके दे रहे होते. अच्छा हाँ, हो सकता है कि आपकी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स हों जो कि आपको कस्टमाइज़ करवाना पड़ जाए. तो Jinko is completely flexible in that thing too. अगर आपने कोई भी कस्टमाइजेशन करवानी है तो those things are available to हम आपको कस्टमाइज करके दे सकते हैं. So that means that the best part is this, that in order to save the time, you people have understood the need of the market, understood the need of the business, and you contacted contacted the ERPs and all these third parties, or you have already done the integration. So that saves the time, that saves the SL, and you're already equipped about it, and you have the complete entire knowledge about it, and it's an ongoing process, and you people are just optimizing it yourself, and you're evolving it, and you're the best thing is that your team is adaptive. Exactly. Even if I share the one major recipe of the success of Jinko Retail, that is we are very customer centric. वैसे लोग पूछते हैं कि यार आप लोग ऐसा क्या कर रहे हो कि आपने एक ब्रांड से स्टार्ट किया था. टुडे वी हैव मोर देन 150 ब्रांड्स कनेक्टेड विद Jinko Retail. तो वन मेजर रेसिपी जो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ, दैट इज बीइंग कस्टमर सेंट्रिक. हम डे वन से जो हमारे में चीज़ है ना, वो ये है कि यार हम जिस भी क्लाइंट को ऑनबोर्ड करने जाते हैं, मैं खुद पर्सनली या कोई भी टीम मेंबर, हमने एक चीज़ रखी हुई है, हम खुद उनके वेयर हाउसेज जाते हैं, उनके जो भी ऑपरेशन हम खुद जाके देखते हैं, हम उनके मसले सुनते हैं, और हम उन मसलों को रिजॉल्व अपने सिस्टम में इस तरह से करते हैं कि यार कल को अगर कोई और ब्रांड आएगा उसका भी मसला हो सकता है, उसका ये भी मसला हो सकता है, तो क्यों ना हम पहले ही अपने सिस्टम में इसको अडॉप्ट कर लें, इसको रिजॉल्व करके अपने सिस्टम में रख लें. तो हम पहले से ही चीज़ों को अपने सिस्टम में कनेक्ट करते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं. कस्टमर की प्रॉब्लम्स को पहले से ये नहीं करें कि यार नहीं, हम खुद नहीं बैठ के सोचते कि यार ये हमें करना चाहिए. हम देखते हैं मार्केट की मसले क्या हैं, हमारे जो रियल टाइम कस्टमर जो कभी हमारे साथ कनेक्टेड हैं उनके क्या मसले हैं. तो बीइंग कस्टमर सेंट्रिक इज़ वन ऑफ द मेजर recipe of the success of Jinko Retail. Well, I was coming to this question, Arbaz, since you are the product owner. So, I would love to ask you, what is the major reason behind the success of Jinko? Is it the young team? Is it the team effort? Or, it's the leadership? I mean, please shed some light on this, the reason behind the success of Jinko. Because, mashallah, as you said, there are 150 brands के साथ आप काम कर रहे हैं, and if you see the stats, your retention rate is very good, sustainability is very good. So kindly tell us the major reasons, if I'll ask you to point it down in pointers. So what is the major reason behind the success of Jinko? There are three major things. Number one is the team. If you look into our team, हमारी जो टीम है, इसमें सबसे पहले जो हमारे CTO, हमारे CEO, जो और इवन द प्रोडक्ट ऑनर, माई सेल्फ, और हमारी जितनी टीम है, हमारे अंदर हायरार्की नहीं है. हमने इसको बड़ा ओपन कल्चर रखा हुआ अपनी टीम में. ओपन टीम है, कोई भी ये नहीं होता कि यार चेन ऑफ कमांड के थ्रू आप किसी से जाके, आज इवन जो भी हमारी टीम में इवन इंटर्नी है, वो जाके डायरेक्टली जो हमारे CEO उबैद से जाके पूछ सकता है कि यार ये क्या है, मुझे ना इस चीज़ में कोई मसला है, आई नीड हेल्प. इवन आज तक मैं उबैद भाई से पर्सनल लेवल पे भी अपनी मेंटरशिप ले रहा होता हूँ कि यार मुझे इस चीज़ में हेल्प चाहिए, मुझे इस चीज़ में हेल्प चाहिए. तो यहाँ पे हायरार्की का कोई कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता. हमारी टीम इज़ अ मेजर थिंग. हम लोग नहीं देखते कि यार ये किसका काम है किसका नहीं. हम लोग बहुत एक जो टाइटली कनेक्टेड एज अ टीम. हमारी टीम एक बहुत मेजर रेसिपी है हमारी जो कामयाबी की, Jinko की सक्सेस की. नंबर 2 इज़ कल्चर. हमारी कंपनी का कल्चर बहुत एक फ्लेक्सिबल, बहुत ओपन है. हम लोग इस चीज़ में बिलीव नहीं करते कि यार सुबह 9 से 6 आना है, आपने ये नहीं करना, आपने हर चीज़ में हम फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं.
ऐसे कहना नहीं चाहिए, लोग कहते हैं कि यार कंपनी कैन नॉट बी अ फैमिली, आप जहाँ पे बिजनेस, लेकिन वी आर ट्रूली लाइक अ फैमिली, हमारे जितने भी लोग हैं। फिर अगर हमारी अपने जो एम्प्लॉयज़ की रिटेंशन देखें, हमारे आज से इवन आई स्टार्टेड एज एन इंटर्नी इन अल्केमेटिव, देन स्टार्टेड इन जिंको, तो मुझे 3 साढ़े 3 साल हो गए हैं, आई हैव बीन कनेक्टेड विद द जिंको। तो जो हमारी रिटेंशन है और जो हमारा कल्चर है, दैट प्लेड अ वाइटल रोल इन द सक्सेस ऑफ दिस जिंको। थर्ड आइटम जो मैंने आपको बताई, थर्ड सक्सेस स्टोरी, कि हम लोग जो हमारा कस्टमर सेंट्रिक बिहेवियर है ना, हम लोग नहीं देखते कि यार क्लाइंट का कि क्लाइंट बड़ा है या छोटा है, क्लाइंट क्या कर रहा है। हम सब रिक्वायरमेंट्स जो हैं हमारी, जो मार्केट में अगर आप देखें एज ए ERP जो हम बैक एंड ERP ऑपरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोग कस्टमाइजेशन के लिए मशहूर है। वट एवर द कस्टमाइजेशन इज़, एज लॉन्ग एज इट इज़ फिजिबल, हम लोग उसको करके देते हैं क्लाइंट को, चाहे वो क्लाइंट छोटा है चाहे वो क्लाइंट बड़ा है। मुझे भी याद है हमारे जो हसन सज्जाद जो हमारे CTO हैं, मुझे नहीं याद आता कि मैं कोई टेक्निकल चीज़ उनके पास लेके हूँ। इवन कभी कभार मुझे होता है कि यार ये पता नहीं कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, लेकिन मैं जब जब जो चीज़ उनके पास लेके हूँ कि यार मुझे क्लाइंट को चाहिए, मुझे नहीं पता मैंने क्लाइंट को ऑनबोर्ड करना है, ये क्लाइंट इज चाहे छोटा बड़ा है, वो मुझे आज तक कभी किसी पर ना नहीं किया कि यार ये नहीं हो सकता, ये बहुत टाइम टेकिंग है, हमने इसको नहीं करना। और हम जो कस्टमाइजेशन करते हैं क्लाइंट्स के लिए, ऑल आर डायनामिक, हम किसी भी चीज़ में उसको स्टैटिक नहीं करते कि ये सिर्फ इस क्लाइंट के लिए। यूनिवर्सली अपने सिस्टम को हम इससे एनहेंस करते जा रहे हैं, एंड दीज आर द 3 मेजर थिंग्स जो कि जिनको की सक्सेस की मेन रीज़न है। True, I agree with you, Arbaz, because you know the major thing is this: when you're able to retain your employee, that brings the more chances to retain your clients as well. And the major problem in big software houses and in big businesses was this: you know, they were not ready to evolve. एक 10 to 6 या 9 to 5 जॉब करने वाले माहौल और कल्चर में वो दे यूज टू बिलीव इट कि यू नो द क्यूरी आएगी, क्यूरी को समझना नहीं है, and instead of finding out the time and the solution to resolve the query, you find out you know there are there are two parts of it. Query आ गई आपके पास, आपने क्या किया कि उसको resolve कर दिया, you find out the solution to it, and अगर वो उसकी durability check कर ली, and you know you had this confidence that I want to do it because इसमें learning भी होगी। एक ये पार्ट होता है। एक दूसरी पार्ट होता है कि यू नो जिसमें क्यूरी आई है और आप 10-15 मिनट लगा के एक डॉक्यूमेंट तैयार करके उनको भेज दें, यू नो क्यूरी भेजने वालों को, ये अपने क्लाइंट को, यू नो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट डूएबल। एग्जैक्टली। तो पीपल दोज हु मेक इट पॉसिबल, यू नो दे ओनली सक्सीड इन देयर लाइफ। एग्जैक्टली। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अरबाज, व्हाट इज वेयरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम? सो वेयरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, लेट मी एक्सप्लेन यू इन अ सिंपल वर्ड्स। कि जब एक ऑर्डर आपका फुलफिल हो जाता है या आपने उसको कंफर्म हो गया थ्रू कस्टमर, अब उस ऑर्डर को आपने, अब आप उस प्रोडक्ट को, जो उस ऑर्डर के अंदर लाइन आइटम्स आई हैं, प्रोडक्ट्स हैं, अब उनको आपने ढूंढ के उनको अब आपने पैक करना है, पिक करना है, पैक करना है, अब उसको शिप मार्क करना है, शिप करना है। तो उसके लिए लेट्स से आप एक ब्रांड है, आपका ऑब्वियसली वेयर हाउस होगा, वेयर हाउस नहीं है तो आपका एक ना एक रूम होगा जहाँ पे आइल्स पड़े होंगे, जहाँ पे आपने बिन्स होंगे, जहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स पड़े होंगे। बेसिकली यानी वेयरहाउस डजंट मीन्स कि बिग फैंसी वेयरहाउसेस जहाँ पे आपका स्टॉक पड़ा हुआ है, जहाँ पे आपका स्टॉक लाई करता है, दैट इज योर वेयरहाउस। एंड यू नो ऑब्वियसली एज सून एज द ऑर्डर लैंड्स, पैक, पिक एंड शिप, ये मेजर काम है इसके, और ये इट हैज टू बी एफिशिएंट। एग्जैक्टली। तो देयर आर 3 स्टेप्स, पिक, पैक एंड शिप। तो इसके अंदर आपके पिकर्स होते हैं, वही आपके पैक भी कर रहे होते हैं, कुछ लोग उसके पैकर्स भी डिफरेंट होते हैं, फिर एक आपकी शिपिंग की टीम होती है जो उनको क्वालिटी एश्योरेंस करके उनको शिप मार्क कर रही होती है। तो ऑल ऑफ दिस स्टेप्स अगर कन्वेंशनल वे में देखें, अगर जो ब्रांड्स कर रहे होते हैं वो अभी मैन्युअली कर रहे होते हैं, ऑर्डर्स आते हैं, उनकी इनवॉइसेस प्रिंट करते हैं, वो अब आगे पिकर्स को देते हैं, पिकर्स उनको निकालते हैं आयल से, बिन से, उनको पैक करते हैं, फिर उनको शिप मार्क करते हैं। अब इसके बीच में क्या होता है, लेट्स से आपके 100 ऑर्डर्स आए हुए हैं, आप वो इनवॉइसेस प्रिंट करके देते हैं, चाहे यार इसको ना पिक कर ले, लेकिन होना क्या चाहिए, अभी वो उनको मैन्युअली कर रहा है। अच्छा, जो उसके हाथ में पहले इनवॉइस आ गया, जो प्रिंट आ गया, उसको पिक कर रहा है, उसको पैक कर रहा है, वो शिप कर रहा है। बीच में हो सकता है कोई पिकिंग गलत हो गई है, उसने गलत शिप कर दी है कस्टमर को, जिससे आपकी क्वालिटी एक्सपीरियंस जो कस्टमर का खराब हो सकता है। एक्सेप्ट बिल्कुल इट्स मैनुअल, और सेल के दिनों में तो ये और भी डिजास्टर्स हो सकता है। तो व्हाट वी डू इन WMS, हमने इस पूरे पार्ट को इसको हमने ऑटोमेट कर दिया हुआ है थ्रू जिंको। अब इसमें क्या है कि हमने प्रॉपर WMS की एप्लीकेशन बिल्ड की हुई है, बोथ फॉर द मोबाइल एंड फॉर द डेस्कटॉप। अब क्या होता है कि जैसे ही ऑर्डर आपका वेरीफाई हो जाता है कि जी अब ये पिकिंग के लिए रेडी है, हम वो ऑटोमेटिकली जो आपके पिकर्स क्रिएट करते हैं सिस्टम में, पिकर्स के अपने अकाउंट्स हैं, पिकर्स अपने मोबाइल पे सुबह के अपनी शिफ्ट स्टार्ट करता है, और ऑटोमेटिकली जो ऑर्डर्स आए होते हैं, जो क्यू में होते हैं, हम पिकर्स को डिपेंडिंग अपॉन कि उनकी वो पिक करने की उनकी क्या है, उनकी लिमिट क्या है, हर बंदे को ना असाइन होते हैं, कैपेसिटी क्या है, यस राइट, कैपेसिटी के मुताबिक उनको ऑर्डर सिस्टम ऑटोमेटिकली असाइन करने लग पड़ता है जिनको, कि आज आपने 100 ऑर्डर्स पिक करने, आपने और ये सीक्वेंस है उसका, और यू हैव टू डू दिस, एंड इंस्टेड ऑफ यू कैरिंग द पेपर्स, वो पेपर माइनस एनवायरनमेंट करने से ये हुआ है
error is going to be the margin error margin is going to be less. एग्जैक्टली वो जाता है, सिस्टम उसको बता भी रहा होता है कि अच्छा ये किस आइल में प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, किस बिन में लोकेशन पे पड़ा हुआ है. अगर आपका फॉर एग्जांपल 1000 स्क्वायर फुट पे आपका एक वेयर हाउस है, तो आप खुद सोचें कि वो उसको कहाँ कहाँ किस आइल पे ढूंढना पड़ेगा. हम इवन ये भी करते हैं, विच इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट थिंग, कि लेट्स से हम आपके वो 50 ऑर्डर्स असाइन हो गए हैं, तो इंस्टेड कि आप पूरा दिन आइल्स में खुआर हो कि यार ये चीज़ कहाँ पड़ी है, ये चीज़ कहाँ पड़ी हुई है, और हो सकता है बैक एंड फोर्थ आप मूव कर रहे हो, हम उसको इंटेलिजेंटली ना उसको इन्वॉइसेस उसके मोबाइल में दिखाते हैं इस सीक्वेंस में है कि आपने भाई ए आइल से स्टार्ट करना है और जेड आइल तक इस तरह से जाना है कि आप एक ही बार में सारे अपने प्रोडक्ट्स पिक कर लो. To save the effort, to save the time as well. एग्जैक्टली एक ही बार में अपना सारे ऑर्डर्स पिक कर लो. तो साथ साथ वो पिक मार्क कर रहा होता है कि मैंने ये आइटम पिक कर लिया, मैंने ये आइटम पिक कर लिया, और वो अपनी बास्केट में चीज़ें रखता जाता है. तो वंस उसने 50 की 50 ऑर्डर्स की लाइन आइटम्स पिक कर लिए, वो आगे पैक टीम को वो पकड़ा देता है. पैक टीम को पकड़ाते हुए अब जैसी पैक टीम जो चीज़ें उससे लेती है, साथ में उनको हैंड ऑफ के लिए स्कैन कर लेती है कि भाई मैंने पिक कर लिया, मैंने इससे रिसीव कर लिया पिकर से. अब पिकर्स का अकाउंट क्लियर हो गया. अब क्या होगा, जो पैक करने वाला है उनको पैक करेगा. पैक करने से पहले देयर इज अ स्टेज ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस. क्वालिटी एश्योरेंस में हम क्या देखते हैं कि जो उसने चीज़ पिक की है, क्या वो वही पार्सल के अंदर पैक कर रहा है, फ्लायर के अंदर जो भी उसका बॉक्स है, ताकि ये ना कस्टमर को गलत चीज़ This happens so many times in the big warehouses that let's suppose AKBC 42 is the SKU on the box and inside उसके 41 होता Exactly. है, कलर डिफरेंट हो जाता है. तो क्वालिटी एश्योरेंस से ये पता चलता है कि प्रोडक्ट डैमेज है या नहीं, और जो बॉक्स के अंदर जो प्रोडक्ट है इज इट द सेम और नॉट. एग्जैक्टली जस्ट इमेजिन कि एक इंटरनेशनल ऑर्डर शिप हो रहा है और वो गलत कोई आप आर्टिकल भेज रहे हो, तो इतनी डिलीवरी कॉस्ट आप दे रहे हो, फिर उसका रिटर्न हो रहा है, तो दैट इज़ अ वेरी बैड इन सेंस ऑफ द कस्टमर एक्सपीरियंस. तो And then it's packed, and then after packed, then it moves to Exactly. the next part where the courier logistics comes and pick it. तो इस केस में हमने क्या किया हुआ, स्कैन एंड शिप की एक ऑप्शन डाली हुई है फॉर द क्यूए. जब तक आप फिजिकली उसके बारकोड स्कैन नहीं करते, सिस्टम उस ऑर्डर को पैक मार्क नहीं करने देता जिनको. यू नीड टू स्कैन द बारकोड्स ऑफ द लाइन आइटम्स ऑफ द प्रोडक्ट्स. जब तक आप प्रॉपर स्कैन नहीं करेंगे वो आगे नहीं जाएगा. तो अब इस केस में जीरो हो जाता है पार्ट के, आप कोई गलत चीज़ शिप कर दो. जब तक आप स्कैन कर रहे हो, स्कैन करके फ्लायर में डालोगे, तब तक वो ऑर्डर आपको पैक मार्क करने नहीं देगा. अब इस पूरी प्रोसेस में ना इनवॉइसेस का जो पार्ट है वो पूरा एलिमिनेट कर सकते हो. जो अब यूजर्स जो हंड्रेड्स ऑफ इनवॉइसेस पेपर जो प्रिंट कर रहे हो, उनको ज़ाया कर रहे हो. But you still need to print the courier invoices to put it on the flyer as well. एग्जैक्टली लेकिन इससे क्या हो रहा है कि पहले आप 2 से 3 इनवॉइसेस प्रिंट कर रहे हो. आप पिकर लिस्ट होती है जिसको हम कहते हैं. बिल्कुल definitely पहले on it was waste of time, it was waste of money, and the margin of error was too much, and there was no sequence. Maybe मेरा ऑर्डर नंबर 1 है, आपका ऑर्डर नंबर 50 है, तो शायद मेरा नंबर ही आज नहीं आया, तो it takes an extra day for the delivery. Obviously फिर वो पेपर्स रखने पड़ते थे. वो एक सारा मैनुअल सिस्टम था जो कि आज से 3-4 साल पहले चल रहा था. सो यू पीपल इंट्रोड्यूस दिस वेयरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम इन ऑर्डर टू ईज द लाइफ of the workers, of the business, of the brand, and to ensure that there is zero margin, and to ensure the efficiency and of the delivery, and there are no errors. So Exactly. this is a big and good job done by you people. पर इसके लिए वेयर हाउस, और ये भी नहीं है कि इसके लिए वेयर हाउस होना जरूरी है. डजंट मैटर, यू स्टार्ट विद स्मॉल. जो आपकी जरूरत है उसके मुताबिक उसके अकॉर्डिंगली इसको इवॉल्व किया जा सकता है. बिल्कुल ऐसी जरूरी नहीं है कि आपका एक फुल फ्लेज बड़ा वेयर हाउस होगा तो आप WMS यूज कर सकते हो. अगर आपका एक Great. कोई भी होता है, This is good. This is great job. Arbaz, please tell us what is the recent or up-to-date biggest achievement of Jinko in terms of operations, in terms of APIs, in terms of every operational thing which you or your software handles. सो द बिगेस्ट अचीवमेंट अगर मैं आपको बताऊं उनको, तो हमने अभी रिसेंटली सफायर की सेल लगी हुई. यू माइट हैव एन आइडिया कि दैट वाज द बिगेस्ट सेल ऑफ पाकिस्तान. Biggest sale in terms of order, in terms of revenue in Pakistan. Yes. So there were hundreds of thousands of orders placed in that sale. So all of those orders were processed through Jinko. Each and every order was processed through Jinko. Obviously, Sapphire is using Jinko as their backend ERP for their backend operations वगैरह. तो they processed all of those orders through Jinko. Even in seconds आपको आइडिया होगा कि पूरी दुनिया से orders place हो रहे थे. तो हमने इस Jinko की रिग्रेशन टेस्टिंग का, इसकी स्टेबिलिटी का, इसकी जो एश्योरेंस है क्वालिटी का, इससे यहाँ से आइडिया हो सकता है कि वो सारे लाखों के लाखों ऑर्डर्स वर प्रोसेस थ्रू जिंको. उनकी जितनी फुलफिलमेंट्स थी, इवन दे आर यूजिंग आवर WMS वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम फॉर दैट थिंग. तो ये सारा कुछ थे फुलफिल थ्रू. इवन एक टाइम पे उनका जो शॉपिफाई था, जो उनका स्टोर फ्रंट था, वो भी बीच में थोड़ी देर के लिए डाउन हुआ था. उनका शॉपिफाई का मसला आया था. लेकिन इन टर्म्स ऑफ जिंको और इन टर्म्स ऑफ जो उनकी इन्वेंट्री मैनेज होती थी सारा कुछ जिंको से, उनकी ERP के लिए सब कुछ, वो कहीं किसी पार्ट पे भी नहीं बैठा. दैट वाज आवर बिगेस्ट अचीवमेंट कि हमारे सिस्टम के थ्रू लाखों ऑर्डर्स विद इन अ फ्यू आवर्स
were processed and placed. Even though, yeah, true, I agree. You mean to say because hundred of thousands of orders were processed through Jinko with a zero hiccup, and udhar koi mistake nahi thi, udhar koi error nahi tha. The efficiency and everything was good. Jabki on the contrary, we see that Shopify is a self-hosted platform, and even Shopify did manage difficulty in accommodating the Shopify. This is what we have heard. This is what we have knowledge in the market. Great. Arbaz, will move to the next part. You've been part of two products, or you've been part of two teams right now. One is the Jinko, which we discussed, doing good, great, stabilized. What felt the need to make Comverse by Jinko, and what is it about? Kindly explain us about that. Okay, so to make commerce as a product, as a e-commerce platform, the need was that कि हम लोगों को लगता है कि हम लोग, आपको आइडिया होगा कि हम लोग 7-8 साल से शॉपिफाई पे काम कर रहे हैं, इस बजटों पे काम कर रहे हैं, मेन शॉपिफाई पे कर रहे हैं, तो इवन वी आर द ओनली शॉपिफाई प्लस पार्टनर इन पाकिस्तान. तो हमने डे 1 से शॉपिफाई के सारी चीज़ों को देखा हुआ है कि शॉपिफाई के क्या मसले हैं, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ शॉपिफाई, और साथ के साथ जितने बैकएंड ऑपरेशन थ्रू जिनको हमने मैनेज किए हुए हैं. तो वी फेल्ट द नीड ऑफ एन आवर केयर. अभी जो मार्केट में जो इन्फ्लेशन जिस तरह से चल रहा है, लोग अभी अफोर्ड नहीं कर पा रहे शॉपिफाई के केस में. देयर इज़ अ रियली अ मेजर मार्केट गैप राइट नाउ कि अभी आपका जो शॉपिफाई है वो आउट ऑफ रीच होता जा रहा है. प्लस शॉपिफाई इज़ नॉट फ्लेक्सिबल इन टर्म्स कि आपने कोई भी कस्टमाइजेशंस करनी है, कोई भी चीज़ें आपने अपने मुताबिक टेलर करनी है, यू कैन नॉट डू दैट. आप अगर वरना शॉपिफाई का सपोर्ट ढूंढने जाए तो वो तो लंबा सपोर्ट है. आपको कोई भी चीज़ अगर आपने करवानी है, इवन थिंग्स आर नॉट टेलर्ड फॉर आवर कंट्री पाकिस्तान के लिए. आपको अभी आपके पेमेंट गेटवेज नहीं यूज़ कर सकते, अपने मल्टीपल करेंसीज में सेल करना है, अगर आप POS उनका आप नहीं सही तरह से यूज़ कर सकते, और आपको इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए छोटे छोटे आपको एप्लीकेशन साथ कनेक्ट करनी पड़ती हैं. सो दिस इज़ द गैप वी वर ट्राइंग टू फिल. और सेकंड चीज़ क्या, हमने 7-8 साल एक इस तरह प्रोडक्ट पे हमने शॉपिफाई पे काम किया हुआ, तो वी रियली वांटेड अ प्रोडक्ट जो हमारा लोकली होम बिल्ट हो, पाकिस्तान की मार्केट के मुताबिक. तो हम लोगों को लगा कि यार हमने अपने घर में हमने अपने पाकिस्तान के लिए भी प्रोडक्ट होना चाहिए, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो कि सारी नीड्स हमारे रीजन की पूरी कर रहा हो. तो दिस वाज द नीड जिसकी वजह से हमने स्टार्टेड वर्किंग ऑन कॉमर्स. तो कॉमर्स ये नहीं है कि हमने अभी लाइव नहीं है कॉमर्स के, भी हमने मार्केटिंग और ब्रांडिंग स्टार्ट नहीं की हुई. अभी हमने फुल थ्रोटल से अब हमने स्टार्ट किया पिछले 1 आधे महीने पहले. हाँ, कॉमर्स इज़ बीइंग यूज्ड, इट इज़ लाइव, ये मीना रीजन में यूज़ हो रहा है एज अ मार्केट प्लेस. और पाकिस्तान में भी PCB जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, दैट इज़ यूजिंग आवर सिस्टम एज ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, बोथ जिंको एंड द कॉमर्स. तो इट इज़ लाइव, इट इज़ बीइंग यूज. हमारे पास मल्टीपल क्लाइंट्स हैं पाइपलाइन में जो इसको यूज़ कर रहे हैं. तो मैं बताता चलूँ, कॉमर्स के अंदर बिल्ट इन पूरा एक मार्केट प्लेस सिस्टम भी एग्जिस्ट करता है कि अगर आप शॉपिफाई पे देखें, आज आप उसको एज अ मार्केट प्लेस, एज अ वेंडर अगर आपने ऑनबोर्ड कर रहे हो, नहीं कर सकते आप. आपको थर्ड पार्टी टूल्स वगैरह जो कि बहुत मुश्किल हो सकता है. यहाँ पे सारा बिल्ट इन है. आप अपने वेंडर्स को लेकर आओ, वेंडर्स को ऑनबोर्ड करो, और उनके साथ आप अपनी सारी उनकी इन्वेंट्री मैनेज, उनको सारे अपने ऑर्डर्स आप कंप्लीट एंड टू एंड मार्केट प्लेस भी लेके यूज़ कर सकते हो. ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर बिल्ट इन. इवन हम साथ के साथ ये चीज़ें देखते जा रहे हैं कि मार्केट में क्या क्या गैप है जो हम फिल कर सकते हैं. लोगों को जो सबसे बड़ा मसला आता है वो आता है पेमेंट गेटवेज का, और जो आपको साथ साथ ड्यूअल करेंसी में सेल करने का, कि आपको क्या करना पड़ा है कि मल्टीपल वेबसाइट्स बना के उनको कनेक्ट करना पड़ा होता है अपने सिस्टम के साथ. कि और शॉपिफाई के केस में भी देखें, आपको 2 वेबसाइट्स बनानी पड़ती हैं, 2 शॉपिफाई स्टोर्स बनाने पड़ते हैं, उनमें अलग-अलग इन्वेंट्री मैनेज करनी पड़ती है. और फिर क्या होता है कि एक स्टोर में कोई और इन्वेंट्री बिक गई है तो दूसरे में माइनस होनी चाहिए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला. वो पार्ट भी बड़ा मुश्किल उनको होता है मैनेज करने के लिए. तो हमने क्या किया हुआ है, सिंगल स्टोर है, मल्टीपल करेंसीज ऐड करो डिपेंडिंग अपॉन योर IP ऑफ योर कस्टमर. उसकी बेस पे आप कोई भी करेंसी चेंज कर सकते हो, करेंसी रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द IP एड्रेस. और साथ के साथ उसकी इन्वेंट्री भी आप डेडिकेट कर सकते हो कि यार मुझे ना US के लिए इतनी इन्वेंट्री सेपरेट रखनी है, मुझे पाकिस्तान के लिए इतनी रखनी है. इवन आप शेयर्ड इन्वेंट्री भी रख सकते हो. ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर अवेलेबल इन सिस्टम. और मेजर थिंग, आपको कोई भी थर्ड पार्टी प्लगइन खरीदना नहीं पड़ेगा. जो आप शॉपिफाई के केस में या किसी भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के केस में आपको जो थर्ड पार्टी टूल्स आप या कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, उनके अलहदा से डॉलर्स में बिलिंग कर रहे होते हैं. तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर कम्प्लीटली इनबिल्ट. और हमारा सिस्टम जो है पूरा का पूरा हेडलेस है. यानी आपका जो फ्रंट एंड और बैक एंड है, बोथ आर इंडिपेंडेंट. आप उसको हमारे थ्रू भी पूरा उसको करवा सकते हो, कस्टमाइज करवा सकते हो, खुद करना तो खुद भी कर सकते हो. तो दिस इज़ व्हाट कॉमर्स इज डूइंग राइट नाउ. So, how many clients does Comverse has right now? We have 3 clients live which are using this system, और हमारे पास मल्टीपल क्लाइंट्स हैं जो कि पाइपलाइन में हैं, जो कि सिस्टम को
अडॉप्ट कर रहे हैं। अच्छा, हमारा जो क्लाइंट्स अभी ऑनबोर्ड करने का तरीका है दैट इज सेम जस्ट लाइक जिंको। जिंको जैसे कस्टमर सेंट्रिक होकर चल रहे थे, हम अभी पैसों के पीछे नहीं भाग रहे। हम इस तरह के क्लाइंट्स ढूंढ रहे हैं जो हमारी तरह से, यानी जो एंथुसियास्ट हों, यानी वो चीज़ों को अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर आए। हमारे पास जैसे क्लाइंट है जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, वो हमारी तरह ही है कि यार हमने ना एक ऐसा वो मूव हो रहा है फ्रॉम मेजेंटो टू कॉमर्स। और मेजेंटो पे वो बहुत एक्सटेंसिव लेवल पर उन्होंने डेवलपमेंट की हुई थी, बहुत एक मशहूर ब्रांड है। तो उनको हम ऑनबोर्ड कर रहे हैं अपने सिस्टम में। तो ब्रांड हमारे साथ लग के पूरी, हम उनकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं सुन रहे हैं, साथ उनको अपने सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करते जा रहे हैं और उनको ऑनबोर्ड कर रहे हैं अपने सिस्टम पे। तो हमारे पास मल्टीपल 8 to 10 ब्रांड्स हैं जो कि पाइपलाइन में, और 3 ब्रांड्स हैं जो हमारे सिस्टम लाइव सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। दैट इंक्लूड्स पीसीबी, जैसे मैंने आपको बताया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यूज़ कर रहा है इसको एंड टू एंड। अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पिछले दिनों जितनी सेल्स लगी हैं, उन्होंने काफ़ी जो बहुत अच्छा, उन्होंने जब से लाइव हुए हैं उन्होंने अपनी बहुत अच्छी, वन ऑफ द बिगेस्ट सेल अपनी की है इन टर्म्स ऑफ पीसीबी ने अपनी ऑनलाइन, तो वो कॉमर्स के थ्रू की है। If you speak about the USP of commerce, what is the USP of commerce by Jinko? यूनिक सेलिंग पॉइंट, राइट? तो Yes. यूनिक सेलिंग पॉइंट इसकी हम लोग सबसे पहले तो आपको पूरा एक कस्टमाइजेबल आपको स्टोर फ्रंट प्रोवाइड करते हैं, कंप्लीट कस्टमाइजेबल, ईच एंड एवरीथिंग इज कस्टमाइजेबल। नंबर 2, कोई भी आपको थर्ड पार्टी एप्स, कोई भी चीज़ आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 3 मेजर, इसमें क्या है कि वन स्टॉप सोल्यूशन, आपको स्टोर फ्रंट से लेके बैकएंड पे जितने ऑपरेशंस हैं ऑल विल बी मैनेज थ्रू अ सिंगल स्क्रीन। आपको कोई भी थर्ड पार्टी ऐप, कोई भी थर्ड पार्टी टूल, कोई भी डिफरेंट स्क्रीन पर जाके कुछ भी मैनेज नहीं करना पड़ेगा, अनलाइक अदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आपको मल्टीपल स्क्रीन्स ओपन करनी पड़ी होती हैं। अगर आप अभी जितने भी ब्रांड्स देखें, सब ने बैकएंड पे, इवन हम जिंको के केस में देखें, वी डू हैव 150+ ब्रांड्स, उनको नीड क्यों पड़ी है बैकएंड ऑपरेशंस मैनेज करने के लिए एक ERP सोल्यूशन की, जस्ट लाइक जिंको? क्योंकि शॉपify पे वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो इस पे कर रहे हैं। तो इन केस ऑफ कॉमर्स वो सब कुछ वी विल मैनेजिंग थ्रू वन स्क्रीन, दैट विल बी कॉमर्स। So that is our major unique selling point. If we compare commerce to Shopify, please tell us, about minimum at least 5 major key points जो एक day-to-day operations बेहतर कर देगा, और it will ease the operations. Number 1, अगर हम कस्टमर परस्पेक्टिव से देखें तो आपके जितने पेमेंट गेटवेज हैं, ऑल ऑफ आर इंटीग्रेटेड इन आवर सिस्टम। लोकल पेमेंट गेटवेज, इंटरनेशनल भी, दैट कैन बी पेपाल, स्ट्राइप, ऑल आर अवेलेबल इन अ सिस्टम। नंबर 1, और इसके पीछे कोई हिडन फीस नहीं है कि आप कहोगे कि यार जैसे शॉपिंग की केस में आपको एक स्पेसिफिकली कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज पे करनी पड़ती है, हम ऐसा कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे होते। सारे पेमेंट गेटवेज आप प्लग इन प्ले, जस्ट आओ और अपने क्रेडेंशियल्स ऐड करो, आपका पेमेंट गेटवे कनेक्ट हो जाएगा विद योर स्टोर। नंबर 1। नंबर 2, आपकी जो आपका ये पार्ट है, OMS का पार्ट है। अभी आपको जो OMS है, आपके जो ऑर्डर मैनेजमेंट है, आपको हम पूरा का पूरा एक ही स्क्रीन पे प्रोवाइड कर रहे होंगे, जिसमें क्या है कि आपकी ऑर्डर स्प्लिट हो रहे हैं, ऑर्डर जिस भी स्टेज पे है, आपको सारा कुछ एक ही स्क्रीन पे पता लग रहा होगा, पूरा कंप्लीट OMS है। फिर आपके पास जो नोटिफिकेशन मैनेजमेंट सिस्टम है, हर स्टेज पे ऑर्डर की ऑर्डर को कब कंसाइनमेंट लग रहा है, ऑर्डर की क्या डिटेल है, ऑर्डर स्प्लिट कब हो रहा है, कस्टमर को बताना है कि आपका ऑर्डर 2 पार्ट्स में आपको डिलीवर होगा, कब कब होगा, पूरा नोटिफिकेशन मैनेजमेंट सिस्टम एग्जिस्ट करता है। CRM एग्जिस्ट करता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, और ये CRM आपका रिटेल साइट से भी कनेक्ट हो जाता है और आपका ई कॉमर्स का, यानी एक ही जगह पे आपकी सारी प्रोफाइल्स क्रिएट हो रही हैं कस्टमर की। कि लेट्स से उमेर की डिलीवरी रेशो क्या एज अ कस्टमर, वो कब कब ऑर्डर एक्सेप्ट कर रहा है, कब कब रिजेक्ट कर रहा है, उसकी बेस पे हम रेटिंग कर रहे होंगे। उमेर को गोल्डन कस्टमर, VIP कस्टमर का टैग देना है। उमेर को उसकी पूरी बेसिकली सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल लोकेशन, उसकी डेमोग्राफिक लोकेशन, सबकी बेसिस पे उसकी प्रोफाइल और उसकी सेगमेंट्स क्रिएट हो रही होंगी। Arbaz, please tell us, since it's the era of artificial intelligence right now, अगर हम AI की बात करें, what's your take on AI, you as in person, and when we speak about AI integration with Commerce by Jinko, is it integrated or not? If it's in process, AI से related, Commerce में हमें क्या एक बेहतर चीज़ देखने को मिलेगी? Okay. AI is the future of e-commerce, so we are working on that. हम लोग AI को incorporate कर रहे हैं in our system, it is in our roadmap of Commerce by Jinko. तो मैं बताऊँ तो we are currently working on the next big thing, that is hyper personalization. अभी ये पाकिस्तान में न्यू है, लोग नहीं यूज़ कर रहे, लेकिन इंटरनेशनली मल्टीपल जितने बड़े नॉमिनल ब्रांड्स हैं उन पे ही सब कुछ यूज़ हो रहा है ये हाइपर पर्सनलाइजेशन। बेसिकली इसमें क्या होता है कि अगर आप एज अ मेल या फीमेल, जो भी जेंडर है, आपके वेबसाइट का जो पूरा इंटरफेस है वो अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस आपके मुताबिक चेंज होता है। लेट्स से उमेर आज एक XYZ वेबसाइट पे जाता है, ही इज़ अ मेल, और वेबसाइट पे उसको आइडिया है, उसके पास डाटा सेट्स एग्जिस्ट करते हैं कि उमेर हमेशा आके पैंट्स खरीदता है या शूज़ खरीदता है, जो भी है,
उसके मुताबिक पूरी वेबसाइट का जो इंटरफेस है और जो आपको वो कैटेगरी शो कर रहा है, जो आपको कलेक्शन शो कर रहा है, जो प्रोडक्ट शो कर रहा है, दैट ऑल विल बी पर्सनलाइज्ड अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस एंड योर डाटा सेट्स। तो उसके मुताबिक ये सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो हमने इसको कॉमर्स में करना भी स्टार्ट कर दिया। अब इसमें हमारी एआई भी इसमें इंक्लूड होगी, सिस्टम खुद डिटेक्ट कर रहा होगा कि आपकी प्रेफरेंसेस क्या हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन योर डाटा, और या फिर आपका जेंडर या जो भी हमने डाटा सेट सिस्टम में एग्जिस्ट बनाए होंगे। तो इसके मुताबिक पूरी वेबसाइट का इंटरफेस आपको क्या डिस्प्ले करवाना है आते साथ ही ऑन द होम पेज या किसी भी स्क्रीन पे, आपको क्या कैटेगरीज शो करनी है, ये सब कुछ उसके मुताबिक ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। क्योंकि आप खुद सोचें कि अगर आप हमेशा आके एक वेबसाइट पे ख़रीद ही शूज़ रहे हैं और अपने लिए ख़रीद रहे हैं, तो आपको मैं क्यों दिखाऊं पैंट्स वगैरह आते साथ ही होम पेज पे? आपको वही कैटेगरी शो करूँ जिसमें आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हो सकते हैं, विच आर लाइकली टू बाय, जिसकी ज़्यादा परसेंटेज हो सकती है। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपर पर्सनलाइजेशन जो कि हम अपने सिस्टम में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। Well, this is good. Yes, with the help of AI, it will be, it will be easier to smooth the process, because at the end of the day, this is what एक तो normally people don't spend a lot of time on the website, और जो टाइम वो स्पेंड भी कर रहे होते हैं उसमें irrelevant चीज़ें उसको नज़र आ रही होती हैं, उसकी मर्जी के मुताबिक नज़र नहीं आ रही होती है। हाइपर पर्सनलाइजेशन से this is and with the help of AI as well, this will be more easier के what I like, I'll have the interface of that. When we speak about speed optimization, when we speak, this is what we are facing, the issue in our region as well, and this is the problem we are facing in Shopify as well, के time to time development करने से जो है थीम की ऑप्टिमाइजेशन को इफेक्ट करता है। अगर हम कस्टमाइजेशन, हार्डकोर कस्टमाइज प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, हार्डकोर कस्टमाइजेशन की बात कर रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक विद रिगार्ड्स टू स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, विद दिस पीपल दोज विल बी मूविंग टू कॉमर्स, विल दिस बिकम एन इशू और विल दिस वोंट बी एन इशू अबाउट द स्पीड ऑप्टिमाइजेशन? बिल्कुल, दिस इज़ अ रियली गुड क्वेश्चन। हम लोगों ने इस पर बहुत किया हुआ है, क्योंकि जो लोग अब मूव हो रहे होंगे उन लोगों का बेंचमार्क शॉपिफाई है। शॉपिफाई इज़ अ वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, जिस तरह से वो चीज़ें सारी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वी हैव रियली वर्कड हार्ड ऑन दैट थिंग टू। हम लोगों ने सारी चीज़ें, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो लोग हैं हमें कंपैरिजन कर रहे हैं विद द शॉपिफाई, तो हम लोगों ने पूरे सिस्टम को, अपने जितना स्टोर फ्रंट है, हमारा जितना ही प्लेटफॉर्म है, इसको हमने हेडलिस्ट रखा हुआ है। और हमारी जो टेक्नोलॉजी है, फिर टॉक अबाउट द टेक्नोलॉजी, जो हमने स्टोर फ्रंट को रखा हुआ है फ्रंट एंड, वो हमारा है नेक्स्ट जेएस पे। बेसिकली इट्स अ सर्वर साइड लैंग्वेज, जिसमें क्या होगा कि आपकी जितनी भी रेंडरिंग हो रही है, जितनी भी प्रोसेसिंग हो रही है, सारी सर्वर साइड पे हो रही होती है। तो इससे क्या होता है कि एक तो स्पीड बहुत अच्छी रहती है, एसईओ में बहुत हेल्प करता है नेक्स्ट जेएस। इट्स अ न्यू टेक्नोलॉजी, इट्स अ न्यू जो कि फ्रंट एंड के लिए यूज़ हो रही होती है। तो उस केस में हमने नेक्सस चूज़ किया हुआ है। और इन टर्म्स ऑफ जो हमारी पूरी जो क्लाउड है, जितनी भी हमारी मैनेजमेंट है, दैट इज़ बेस्ड अपॉन द AWS। हमने अमेज़ॉन की सर्विसेज ली हुई हैं, तो इसको हमने बहुत एक्सटेंसिव लेवल पे इसकी टेस्टिंग, लोड टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग वगैरह सब कुछ किया हुआ है। इवन अगर हम देखें तो हमने इसमें मल्टीपल चीज़ें अप्लाई की हुई हैं। हमने इस पर कैशे की हुई है, हमने इस पर इलास्टिक सर्च को इम्प्लीमेंट किया हुआ है कि बार बार सिस्टम पे जितना मर्जी लोड आए, वो डायरेक्टली हमारे सिस्टम की डेटाबेसिस को या किसी भी पार्ट को चोक नहीं कर रहा होता। अब हमने उसको अमेज़ॉन के पास किया हुआ है सारा। और हर रीजन में, लेट्स से अब जिस भी रीजन से आते हैं हम, उस रीजन में हमने उस डाटा को सारा स्टोर किया हुआ है। तो एज अ कस्टमर आपको वहीं से ही वो मिल रहा होगा, आपको ये कभी भी लोड टाइम्स का, इन चीज़ों का इशू नहीं आ रहा होगा। इन शॉर्ट, इन Well, great. That means के speed optimization के is you kept the team building this platform kept this thing in mind, that speed optimized, because people will be majorly people will be moving from Shopify, so speed optimization won't be an issue according to you. Exactly, yes. Well, that is great. We're looking forward to see what happens in this, and we wish you best of the luck for as well for this commerce. My last question is this: data migration process. People, those who will be migrating from Shopify, Magento, whatever the platform they are on, how easy is it gonna be easy, this the migration process, and is Converse by Jinko will be SEO friendly or not? Because this is what we have noticed, that some of the platforms are SEO friendly, some of the platforms are not SEO friendly. Is the building team keeping this thing in mind? Exactly. अच्छा, लेट मी टेल यू अबाउट द SEO थिंग फर्स्ट। अगर हम SEO की बात करें तो वी हैव डेडिकेटली SEO टीम, जो कि हमारे सिस्टम को एज अ प्रोडक्ट लेके चल रही है कि हमने इसको SEO फ्रेंडली किस तरह से रखना है। सारी चीज़ों को कि हमने किस तरह से क्या क्या इंटीग्रेशंस रखनी है, हर प्रोडक्ट में क्या हमने SEO की, हमने क्या लिमिट्स वगैरह किस तरह रखनी है, कीवर्ड्स वगैरह, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग इज़ बीइंग मैनेज्ड बाय दैट टीम। वो सारा कुछ खुद उसको लेके चल रही है, साथ साथ उसको टेस्ट आउट भी कर रही है विद हेल्प ऑफ क्लाइंट्स को भी हम साथ साथ बता रहे हैं, उनका भी फीडबैक ले रहे हैं साथ साथ कि उनका क्या एक्सपर्टीज है उनकी SEO टीम्स का। तो दैट इज़ बीइंग हैंडल्ड बाय अ सेपरेट डिपार्टमेंट, जो कि डेडिकेटेडली काम ही SEO पे कर रहा है।
क्योंकि अगर आप अभी शॉपिफाई के केस में भी देखें, उनकी एसईओ इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन दैट। तो हमारा जो कंपैरिजन होगा, जो लोग हमें जज कर रहे होंगे, जो हमारे सिस्टम को कंपेयर कर रहे होंगे, दैट विल बी विद द शॉपिफाई। तो हम एसईओ को बहुत ज़हन में रख के कर रहे हैं इस चीज़ Because को। your majorly clients will be moving from Shopify to Commerce. So keeping that thing in mind, you need to provide best and better than the services which they're providing. We'll speak about the last question is this. Kindly explain us the process of data migration from one platform to the other platform. बिल्कुल। अच्छा, डाटा माइग्रेशन के केस में हमारी जो है, हमने इसको पहले भी काफ़ी बार किया हुआ है, नॉट इन टर्म्स ऑफ कॉमर्स। हम जिंको के केस में भी जो लोग हमारे पास मूव होते थे, तो उन सबका डाटा माइग्रेट करना फ्रॉम प्रीवियस हिस्टोरिकल डाटा, जिसको हम कहते हैं, फ्रॉम शॉपिफाई टू इवन जिंको। तो हमने इसके लिए पूरे का पूरा एक हमें बस एक्सेस चाहिए होती है थ्रू डाटाबेस और थ्रू, आप हमें बता सकते हैं, थ्रू एपीआईज। अगर आप एक लेमैन आकर आप उसकी टेक्निकल टीम नहीं है, तो हमें सिर्फ आप अपनी एक्सेस दे सकते हैं डाटा की। अगर आप एक्सेल की फॉर्म में भी दे सकते हैं तो दैट इज़ फाइन टू। अगर आप हमें डाटाबेस की एक्सेस देते हैं तो दैट इज़ ईजी। हम 2 से 3 दिन में आपका जितना भी डाटा है, वी कैन मूव दैट ऑल हिस्टोरिकल डाटा टू आवर सिस्टम। और आपको जिस तरह से भी वो डाटा चाहिए होगा, आपको जो जो फील्ड्स रिक्वायर्ड होंगे, हम सारा डाटा वी कैन ट्रांसफर दैट डाटा टू द जिंको पार्ट। So that is not an issue in terms of migration. Well, that means that you and your team is fully technically equipped and keeping thing in mind and doing the research and doing the R&D, and you don't just wait for the problem to arise and then you will find a solution to it to the best of your knowledge and expertise. जो market में problems हैं, your kid, because you are making a solution and you have already made a solution with regards to the problems which exist in the market, and people and brands and businesses are already facing it. So your team is fully equipped with it, and we wish you best of the luck with this new thing, Commerce by Jinko, and we hope that this bring best to the businesses, and since we all are looking for one-stop solution, and we are also since of the economical issue, we want the things and the products which are locally developed, so the money doesn't go out of the country, and which eases the process as well, and yeah, that's it. Thank you very much for joining us today. Thank Take you. care. Allah Hafiz. Thank you.